Very good morning, students. Today we are going to start a new chapter from your history book, and the chapter is Ashoka, the emperor who gave up war. Please confirm the chapter number from your book. I have not written the chapter number because there is some confusion in the new book and old book. So we are today going to read about Ashoka and how and why he is considered a great king in the Indian subcontinent. What are his works, the dynasty to which he belongs. We are going to cover all these things, but I am going to do now, I will be giving you all the brief instructions in this particular video, and in the next session we will be doing the reading of the chapter. तो इसमें हम अशोका के बारे में पूरा समझने की कोशिश करेंगे, उसकी अर्ली लाइफ जिसका कि ट्रैक उसके इंस्क्रिप्शन से इतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में समझेंगे. देन what information we get about his life, how he has become such a great king. Rather, he is the ruler of a very big kingdom, that is an empire. We will try and understand the difference between an empire and kingdoms, and we will see who were the people who have important places also in his life, what important incidents happened in his life, because he is one of the great kings India had. So and he has done so much for the welfare of the subcontinent that reading about his history is a must. So let's start with the introduction about Ashoka. As I have told you that Ashoka was one of the greatest ruler known to the history, and on his instructions were inscribed on pillars as well as on rock surface, right? आपको पता है, just relate all the things which you have written. You know the importance of inscriptions in history. How do we know about these people? This is through these inscriptions only, these manuscripts only, that we know about the history. Otherwise कोई और पॉसिबल वे आपको समझ आता है हिस्ट्री कैसे पता लगेगी? नहीं, हिस्ट्री पता लगाने के लिए ये जो रूलर्स, ये जो लोग पहले लिख के गए हैं, हमारे लिए छोड़ के गए हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इंस्क्रिप्शंस आर लाइक ओनली सोर्स जहां से हमें पता लगता है. डिगिंग से जो मतलब ये नहीं है कि इंस्क्रिप्शन से खाली पता लगता है, बिल्डिंग्स को भी रीड करके पता लगता है, लेकिन एक बेसिक जो फाउंडेशन मिलती है वो इंस्क्रिप्शंस उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. कॉइन रीडिंग भी हम करते हैं, हम पेंटिंग्स के थ्रू भी डिपिक्ट करते हैं, लेकिन उसमें गेसेस ज़्यादा होते हैं. जो रिटन हमें समझ आ जाती है स्क्रिप्ट, वो दैट इज़ वेरी वेरी एप्रोप्रिएट ऑल्सो. So he has because he was a great king, he knows the importance की हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है. तो बहुत सारे ऑथर्स ने, इवन उसके अंडर वर्क करने वाले ऑथर्स ने भी, एंड द ट्रैवलर्स ऑल्सो, दे हैव रिटन इन ग्रेट डील अबाउट अशोका. So before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. उसको empire क्यों बोला गया? What is the difference between means a kingdom and an empire? ठीक है, अभी तक हम किंगडम्स के पार्ट पढ़ रहे थे. जस्ट ट्राई टू रिलेट दिस कॉन्सेप्ट अबाउट जनपदास एंड महाजनपदास. We have seen that there was difference in janpadas and how gradually they became strong and they enhanced their problem, what changes they did, and they became महाजनपदास. वो कॉन्सेप्ट को यहाँ से रिलेट करके आप देखिएगा कि how these empires were different from kingdoms. सिमिलरली जो किंगडम्स थे वो ज़्यादा रिसोर्सफुली रिच थे, वो ज़्यादा उनके पास मिलिट्री पावर्स थी, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए होते थे किंगडम्स के मुकाबले में. ठीक है, उनको फिर बिग आर्मीज भी चाहिए थी, बिकॉज दे आर ऑन द वे टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज, सो दे नीड टू फाइट. ओके, so they need to maintain big armies, and they need, when their area became large, they need large officials to collect taxes also. So that thing, जैसे जनपदा और महाजनपदा में डिफरेंस था कि वो सेल्फ कंटेंट छोटा सा उनका एरिया था, महल नहीं होते थे, उसी तरह से एम्पायर्स जो थी वो उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी जो आपके किंगडम्स थे. ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस हमने समझा एम्पायर और किंगडम्स के बीच के अंदर.
और अब हम पढ़ेंगे कि लाइक जो वेरी बिग किंगडम, एक बहुत बड़ा एम्पायर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और उसका रूलर अशोका. अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ हिस्ट्री, रूल्ड एम्पायर फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. इसको विरासत में मिला था, इसके दादाजी ने एस्टैब्लिश किया था मौर्यन डायनेस्टी को. उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य. ओवर 2300 years ago, his grandfather Chandragupta Maurya established दिस किंगडम, जिसका नाम रखा, जो कि मौर्य, उनकी डायनेस्टी कैसे बना कि उनके उस चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र जो थे बिंबिसार, उन्होंने इसको रूल किया चंद्रगुप्त के बाद. और उसके बाद फिर जो अशोका आए, और अशोका के टाइम पीरियड के अंदर तो ये एम्पायर जो था वो बहुत ही ज्यादा फैलता गया, बहुत पावरफुल बन गया, और बहुत ही अच्छा किंग भी अशोका जो था वो बना. लेकिन उससे पहले हम वॉर के बारे में भी उसके में पढ़ेंगे, देखते हैं. सो दिस अशोका वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम चाणक्य, और चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य भी मेंशन किया गया आपके बुक में. चाणक्य इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत ही रेपुटेशन है उनको, बहुत ही कूटनीतिज्ञ बोले जाते थे, बहुत ही डिटेल, जिनको पॉलिटिकल नॉलेज थी, अर्थशास्त्र की नॉलेज थी, जिन्होंने बहुत सारी नीति लिखी, इन्होंने, इनके ग्रंथ आज भी रेफर किए जाते हैं. तो चाणक्य इज ऑलवेज कंसिडर्ड लाइक a very very great man, and he was assisting Ashoka, and with Chanakya's help and guidance, Ashoka have become so powerful that even today people consider him as the greatest king of this subcontinent. Okay, सो दिस वाइज मैन, और चाणक्य आप ये कह सकते हैं कि ये इनके मंत्री थे, सलाहकार थे, और इन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी अर्थशास्त्र. और ये इस तरह से जो डायनेस्टी थी चल रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया. उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार, सॉरी आई थिंक आई हैव प्रोनाउंस्ड बिंबिसार, प्लीज मार्क इट इज बिंदुसार थे उनके बेटे, और बिंदुसार के बेटे थे अशोका. तो डायनेस्टी क्या होती है, जब एक मेंबर सेम फैमिली का रूलर बनता जाता है, एक के बाद एक, मतलब दादा के बाद पिता बने, पिता के बाद पुत्र आ गया, तो वो डायनेस्टी, उसको हम डायनेस्टी बोल देते हैं, वंशावली या राजवली बोल देते हैं उसको. ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी इज अ वेरी ग्लोरिफाइड एंड वेरी पावरफुल डायनेस्टी विच हैज रूल्ड इंडिया. ओके, सो देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, और आपको इसमें मैप भी दिया होगा. इफ यू रेफर टू योर बुक ऑन पेज नंबर 76 इन द ओल्ड बुक, प्लीज फाइंड आउट दिस न्यू बुक. देयर इज अ मैप विच इज शोइंग द एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर. ओके, और इसके अंदर आपको डॉट से इंस्क्रिप्शन जहां जहां मिले, और जहां पर इंपॉर्टेंट सिटीज थी वो ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंटेटेड हैं, और जहां से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो आपके रेड डॉट से हैं. कैन यू सी द एक्सटेंट? दिख रहा है आपको? अफगानिस्तान से लेके और आपको साउथ तक, बंगाल तक हमें दिख रही हैं. और नीचे अगर हम जाएं तो सिर्फ केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका का, इवन कर्नाटका और तमिलनाडु में भी टच है. केरला जो है वो एक्सक्लूडेड है, अदरवाइज सारी जगह पर आपको दिख रहा है कि पूरी तरह से, एक तरह से इन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट को जो है वो रूल किया. इसके अंदर इनकी जो कैपिटल थी पाटलिपुत्रा थी, और तक्षशिला और उज्जैन जो थे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, प्रोविंशियल कैपिटल्स कह सकते हो आप इनको. गेटवे थे ये नॉर्थ वेस्ट में जाने के लिए. और उज्जैन जो था वो नॉर्थ टू साउथ इंडिया के बीच का रूट था. तो बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट थे वो तक्षशिला और आपका उज्जैन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था. मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स लिव इन दीज सिटीज. इन अदर एरियाज देयर वर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्बर्स. In central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different part of the empire spoke different languages and ate different kind of food. They wore different kind of clothes as well. Because बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं ना, तो डिफरेंसेस आने तो लाजमी है कि इसके अंदर डिफरेंसेस आएंगे. बिकॉज वी नो कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विविड क्लाइमेट्स, विविड टेरेन्स, विविड लैंड फॉर्म्स. तो अकॉर्डिंगली लोगों का लिविंग हैबिट्स, ड्रेसेस, एवरीथिंग चेंज. तो बिकॉज मौर्यन एम्पायर वॉज कवरिंग अ ह्यूज एरिया, so in their empire people of different
people speaking different language, people wearing different kind of clothes, people eating different kind of food, people having different kind of ethics were found. ओके तो ये चीज हमने कॉन्सेंट्रेट करनी है, हमें एरिया या एक्सटेंट जो है इस एम्पायर की याद रखनी है जब भी हम पढ़ेंगे. And now ruling such a, let's talk about the ruling, how he ruled this empire. Large empire in different parts are ruled differently. The area under Patliputra was under the direct control of the emperor. वो वहीं रहते थे, कैपिटल सिटी में रहते थे, तो डे टू डे एक्टिविटीज पे भी उनका होल्ड होता था. बिकॉज जस्ट इन द बैक ऑफ योर माइंड कीप इन माइंड दैट in those days there were very less facilities regarding transportation and communication. तो संदेश पहुंचने में कहीं कहीं दिन लग जाते थे, तो आप होल्ड कैसे कर सकते हो ना किसी भी चीज को जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है. अब तो एवरीथिंग इज लाइक ऑन टिप. आप इवन द सिस्टम इज लाइक दिस कि आप ऑफिस में बैठे हैं, यू हैव सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल ऑफ योर हाउस, यू कैन वॉच everything which is happening in your house. If you are at your house and you have installed cameras in your business place, so you can sit at your home and you can like operate the things over there with the help of workers or whatever help you are having over there. So इसीलिए बहुत ज्यादा आज की लाइफ जो है बहुत ज्यादा फास्ट पेस्ड है, बहुत ज्यादा कंट्रोल आप रख सकते हैं. बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दैट. तो जो एम्परर थे उनके डायरेक्ट कंट्रोल में हमेशा कैपिटल रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी जगहों के बारे में उन्होंने कुछ कर नहीं रखा था. दे हैव ऑफिशियल्स whom they have appointed to collect taxes from farmer, herders, craft persons and traders. You know, tax is the one of the most important revenue which the king get. युद्ध करके दूसरे राजा को हरा कर उसका खजाना तो वो लेके आते थे, एड ऑन करते थे, लेकिन अपनी प्रजा से भी वो बहुत मात्रा में टैक्स लेते थे और वो भी उनका एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ रेवेन्यूज था. They also punished those who disobeyed the ruler's order. Officials were given salaries. Messengers went to and fro. Also spices kept a watch on the official. कितने बच्चों ने एक एपिक आया था अशोका द ग्रेट. Have you watched that epic on the television? It is like highly recommended कि आपकी बहुत ही इंटरेस्ट पैदा कर देती है चीजें जब ड्रामेटाइज किया जाता है उनको. तो अगर आपने नहीं भी देखा है, फाइंड इट आउट ऑन यूट्यूब एंड जस्ट वॉच दैट टेली सीरियल अशोका द ग्रेट. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड आई हैव ऑल्सो सीन दैट एपिक एंड आई मस्ट से द करेक्टर्स आर ऑल्सो लाइक वेरी वेरी टैलेंटेड. तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत ही इजिली आपको इस इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में पता लग जाएगा इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे. Don't watch the whole series in one go, just half an hour, dedicate half an hour daily और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. एंड एज अ हिस्ट्री टीचर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट रूलर्स. एटलीस्ट जो मेन ग्रेट रूलर्स हुए उनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या था उनके अंदर, ऐसा क्या था कि इतनी ज्यादा जब फैसिलिटीज भी नहीं थी फिर उन्होंने इतने ह्यूज एरियाज को कैप्चर कैसे किया, इतने लॉन्ग पीरियड के लिए रूल कैसे किया. दिस इज डजंट इट लाइक रेज क्यूरियोसिटी इन अस. क्या क्यूरियोसिटी होगी जबकि वो कॉन्टिन्यूसली उनको खतरा रहता था कि लोग उनके जो इवन जो अपने स्टेप ब्रदर्स या ऐसे होते थे वो भी उनको किल करने की कोशिश करते रहते थे. तो हाउ दे यूज टू ग्रो सच अ लॉयल एंड बिग नेटवर्क जो उनको सपोर्ट करता था. वो इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है. आज कितना मुश्किल है किसी सामने वाले से अपनी बात मनवाना, तो कैसे वो इतनी ग्रेट फिगर कैसे बनते थे, व्हाट वाज द रीजन. यू शुड वॉच दिस, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, so we were talking about that they were having like messengers, officials. The emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. Other areas or provinces were ruled from a provincial capital. और मैंने आपको अभी बताया था कि मेन कैपिटल जो थी मौर्यन एम्पायर की पाटलिपुत्र थी, लेकिन उसकी दो प्रोविंशियल कैपिटल्स भी थी जिसको तक्षशिला और उज्जैन बोलते थे. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थी. क्यों इंपॉर्टेंट थी ये भी मैंने आपको बताया कि एक तो उज्जैन जो थी वो नॉर्थ और साउथ के बीच का जो था रूट उसके बीच में पड़ती थी. तो जो ट्रेडिंग इन कंट्री हो रही थी नॉर्थ और साउथ के अंदर उसका पूरा होल्ड जा रहा था वहां पर. और दूसरा तक्षशिला के बारे में पढ़ा था कि वो नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, नॉर्थ वेस्ट में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए वो एक गेटवे था. तो तक्षशिला इसलिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था. राइट, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए दोनों टाउन्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन विल कम रिगार्डिंग दीज टू टाउन्स. सो
यहाँ पर जो प्रोविंशियल कैपिटल्स होती थी वहां पर ब्रदर या रिलेटिव्स को क्या था कि वहां पर रॉयल प्रिंसेस को भेज दिया जाता था गवर्नर बना के, क्योंकि उनको फेथ था कि ये हमारा परिवार है और हमारे लिए वर्क करेगा। तो एक लॉयल्टी वाला जो फैक्टर था वो बहुत अच्छे से प्ले होता था, वो वर्क करता था इस डायनेस्टी या किसी भी डायनेस्टी को सर्वाइव करने में और उसको स्प्रेड करने के लिए। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड and there were vast areas between these centers. Mauryans tried to control road and river important for transport. क्या करते थे, ये हर कोई करता था। मान लीजिए हम सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सिल्क रूट क्या था, चाइना से और फार अवे नॉर्थ वेस्ट के अंदर कंट्रीज के अंदर जो है चाइना ने क्या किया था, चाइना वॉज वेरी स्मार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसको सिल्क प्रोडक्शन आती थी एंड बिलीव मी मोर देन 1000 ईयर्स इसने अपना ये सीक्रेट कि सिल्क बनाता कैसे है किसी को लीक आउट नहीं होने दिया, किसी को लीक आउट नहीं होने दिया। तो मोनोपोली रही ना, इसकी मोनोपोली रही और इसी मोनोपोली इसी सिल्क ट्रेड की वजह से ये इतना फ्लरिश हुआ। तो अब जो इंडिया के थ्रू इसको जाना पड़ता था नॉर्थ वेस्ट में, अफगानिस्तान एंड फार अवे सेंट्रल एशिया वगैरह के अंदर इसको जाना पड़ता था। तो जो किंग्स होते थे ना, जो चाइना से लेके और अफगानिस्तान जाने का जो रूट है उसको सिल्क रूट बोलते थे। उस पर कैप्चर करते थे कि जितने भी चाइनीज आएंगे वो उनको टैक्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ सिल्क और वट एवर that was the thing that was used in that time। तो सिल्क रूट पे हर राजा जो भी डायनेस्टी पावर में आई उसने हमेशा कैप्चर करने की कोशिश की सिल्क रूट को, बिकॉज यहाँ से जो व्यापारी जाते थे वो उन्हें भारी टैक्स देते थे और दिस ब्रिंग देम रिचनेस एंड मनी एंड एवरीथिंग, मतलब पावर रिसोर्सेज उनके पास इस वजह से आते थे। तो ये लोग टैक्सेस भी लगाते थे इस तरह से और ट्रिब्यूट्स भी देते थे लोग। टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स में क्या फर्क होता है, टैक्सेस जो है वो लाइव किए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट किए जाते हैं। ट्रिब्यूट क्या होती है, भेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये लोग अपनी मर्जी से देते हैं अपने राजा को, विलिंगली, मतलब कभी ज्यादातर विलिंगली देते हैं गिफ्ट करने के लिए। अगर दे आर हैप्पी तो वो देंगे, या उनको अगर भय है कि राजा को खुश रखना है तो इस वजह से भी उनको ट्रिब्यूट देंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ट्रिब्यूट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके अगर हम बात करें द फेमस मौर्यन डायनेस्टी के अंदर जो सबसे फेमस हुआ वो अशोका ही हुआ। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. These inscriptions were in Prakrit and written in the Brahmi script. Please underline this. This is very important. And when we talk about Ashoka, बहुत उसने रूल किया, बहुत एक्सटेंड किया अफगानिस्तान से। आप देख रहे हो कहाँ आपका बंगाल से भी आगे तक जा रहा है, नीचे डाउन साउथ तक जा रहा है, सिर्फ केरला ही लेफ्ट आउट है। तो इतना जो उसने वॉर किया, एक्सटेंड किया, उसके बाद एक इंसिडेंस उसकी लाइफ में चेंज जिसने ड्रास्टिक चेंज लाया, दैट वाज द वॉर इन कालिंगा। कालिंगा वाज एन एंशिएंट नेम फॉर कोस्टल ओडिशा का नाम है कालिंगा। और यहाँ पे ये कालिंगा को जब विजय करना पाता था तो इसने ना उनके साथ फाइट किया। तो वहां की जो प्रिंसेस थी उस शी वॉज वेरी ब्रेव और उसने भी बहुत जबरदस्त इसके साथ लड़ाई की। ही वॉज हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड एंड आफ्टर दिस वॉर ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट फाइट एनी मोर वॉर। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, जिसने जीत के बाद लड़ाई छोड़ दी। इतना वो युद्ध स्थल में इतना ज्यादा उसने मार काट से उसका मन में चेंज आया कि उसने बोला नहीं अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। वट वॉज अशोकास धम्मा, यहाँ पर सीन आता है धम्मा का, ठीक है। इसने प्रेपोगेट किया फिर धर्म की तरफ, इसका स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन हो गया आफ्टर द कलिंगा वॉर। This Dhamma didn't involve worship of a god or performance of sacrifice. मारकाट से ये बिल्कुल दूर हो गया था, बलि वली अब इसको समझ नहीं आ रही थी। He had a duty to instruct his subject and was also inspired by the teaching of the Buddha. A number of problems troubled him. People in the empire followed different religions which led to conflict. जब लोग डिफरेंट बिलीव्स होते हैं ना तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, जो वो कर रहा है वो गलत है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगे, जानवरों की बलि दी जाती थी, स्लेव्स और सर्वेंट्स को इल ट्रीट किया जाता था, अक्सर परिवारों में झगड़ा हो रहा था, पड़ोसियों में झगड़ा हो रहा था। तो एज अ किंग इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्मा महामतास। ये धम्मा महामतास क्या करते थे, ये लोगों को जगह जगह जाके प्रीचिंग करते थे, पीसफुल लिविंग, हार्मोनियस लिविंग की प्रीचिंग करते थे। अब इसके जो मैसेजेस थे वो रॉक और पिलर्स पे इंस्क्राइब कर दिए गए। इसकी ये इंस्ट्रक्शन ऑफिशियल्स जो है रीड करते थे लोगों को
और जो कि खुद प्राकृत या ब्राह्मी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते थे. ही ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स लाइक सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. इसने बहुत वर्क किया बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए आउट ऑफ इंडिया में. He built roads, dug well, built red house and arranged for medical treatment for both human beings and animals. And this way, ये सब qualities क्या दिखा रही है कि how he became a great king, one of the greatest king of India. कैसे बन गया ये ना, लाइक वॉर ने इसकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया. फिर इसका जो बेटा था और बेटी थे वो लोग भी गए श्रीलंका तक स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज्म्स को. और अशोका ने ये मान लिया था कि इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पीपल. सो ही स्टार्टेड डूइंग द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. अपने लोगों को इसने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, उनकी डेवलपमेंट के लिए, पीस के लिए, हार्मोनी के लिए इसने बहुत ज्यादा वर्क किया. So this was all about this chapter. This is a brief in which I have tried to make you clear about Ashoka, his greatness, his life, the important people in his life, and I have also discussed about the difference between a kingdom and empire, which is one of the important topic in this chapter, which we need to learn, which we need to remember. Then the map is also important. We have talked about Ujjain and Patliputra, and of course about Takshila also. So this was all in this chapter. What we will be doing the book exercise today as homework. I will take the doubt class, and if required, we will do in the next session. What we will do, we will read the whole chapter, and then once again I will try to explain it. Let me evaluate in the live session how far you have understood the chapter. Okay, so that's it. That's all in this video, and let us catch up in the live type session. Bye bye.